نے ہندی فلمیں دیکھنا شروع کر دی اور بالی ووڈ میں اداکار شاہ رخ خان میرا پسندیدہ اداکار تھا۔ میں نے شاہ رخ خان کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرنا شروع کیا۔ ہمیں اسکول میں 1 گھنٹہ ملتا تھا جب ہم انٹرنیٹ پر کچھ بھی سرچ کر سکتے تھے، تو میں شاہ رخ خان کے بارے میں سرچنگ کرنے میں سارا وقت گزار دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں آج ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ایک غیر مسلم لڑکی جو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی اسٹوری کی ویڈیو پہ۔ ویڈیو بہت ہی دینی اور اسلامی معلوماتی ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو دبانے سے یہ ہوگا میں جو بھی نئی ویڈیو پوسٹ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی دینی اور اسلامی معلوماتی ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، صراط مستقیم کے متلاشی کسی بھی شخص کی زندگی کی داستان سننے سے زیادہ ایمان افروز داستان کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلم پیدا ہوئے وہ راہ حق کی تلاش میں کتنی محنت کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے تک ہی ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد بھی وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ایسی داستانیں سننے کے بعد ہی احساس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں تو ہم جنہیں پیدائش سے ہی یہ انعام ملا ہے کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو اس بہن کی کہانی اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ ناظرین، اس بہن نے اپنی زندگی کی کہانی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں پرتگال میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد میری فیملی لکسمبرگ میں منتقل ہو گئی۔ میری پرورش ایک کیتھولک کے طور پر ہوئی تھی، اس لیے میں نے بپتسمہ لیا۔ ہفتہ اور اتوار کو میں چرچ جاتی تھی۔ مجھے یہ واقعی پسند تھا کیونکہ یہ ایک اچھی چیز تھی، میں نے خدا کے قریب ہونے میں اچھا محسوس کیا۔ لیکن جب میں چھوٹی تھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم چرچ میں کیا کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ چرچ میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں، کیونکہ میں جب بھی جاتی تھی مجھے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، اس لیے اس سے مجھے نفرت سی ہو گئی اور میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے گھر میں اکیلے ہی مذہب کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ میری ماں نے ہمیں جیزس کے بارے میں بتایا اور انہوں نے ہمیں وہ کہانیاں سنائی جو انہوں نے اپنی ماں سے سیکھی تھی۔ مجھے وہ دن بہت اچھے لگتے تھے، لیکن ایک بچی تھی تو میں نے زیادہ اس بارے میں سوچا نہیں۔ چرچ میں اور اسکول میں بھی جب ہم جاتے تھے تو عیسائیت کے بارے میں ہمیں کلاسز لینی ہوتی تھی۔ ہمیں ان کلاسوں میں وہ تثلیث کی تعلیم دیتے تھے۔ ہمیں وہ جیزس کے بارے میں جو سمجھاتے تھے وہ اس سے بالکل الگ تھا جو ہم جیزس کے بارے میں سوچتے تھے۔ یہ سمجھ سے بالاتر تھا، اس لیے میں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ میں صرف یہ مانتی ہوں کہ جیزس واقعی ایک اچھے آدمی تھے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دے سکتے تھے اور وہ صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ میرا جیزس سے متعلق ایمان تھا اور ہمیں اسکول میں کچھ اور ہی پڑھایا جا رہا تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک وقت آیا جب میں نے ہندی فلمیں دیکھنا شروع کر دی اور بالی ووڈ میں اداکار شاہ رخ خان میرا پسندیدہ اداکار تھا۔ میں نے شاہ رخ خان کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرنا شروع کیا۔ ہمیں اسکول میں 1 گھنٹہ ملتا تھا جب ہم انٹرنیٹ پر کچھ بھی سرچ کر سکتے تھے، تو میں شاہ رخ خان کے بارے میں سرچنگ کرنے میں سارا وقت گزار دیتی۔ ایک دن اسی طرح مجھے ایک انٹرویو ملا۔ جو شخص وہ انٹرویو لے رہا تھا وہ ایسے سوالات پوچھ رہا تھا جیسے تمہارا پسندیدہ رنگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ سوال آیا کہ تم مسلمان ہو، تو شاہ رخ خان نے کہا ہاں، اور یہ پہلی بار تھا کہ میں نے لفظ مسلم سنا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مسلم کیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک مختلف مذہب ہے، لیکن زیادہ اس سے متعلق کچھ پتا نہیں تھا کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی تو میں زیادہ سمجھی نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں اسلام سے متعلق کچھ معلومات لینے میں کامیاب ہو سکی۔ میں نے اس انٹرویو کے پرنٹ آؤٹ نکال کر اپنے کمرے کی دیوار پر لگا رکھے تھے اور ان میں ایک صفحے پر یہ بھی لکھا تھا کہ شاہ رخ خان مسلمان ہے۔ It was a time in my life that I started watching Indian movies like Bollywood, and there was one famous movie star, Shah Rukh Khan, and I really loved that. Asking him questions like, what's your favorite color and blah blah blah. And it came like a question, are you a Muslim? So he answered, yes.
And this was the first time that I heard the word Muslim. इस बहन का कहना था कि फिर वक्त गुजरता गया और मैं ये बात भूल गई और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर दूसरी मर्तबा मुझे इस्लाम का इल्म चंद साल बाद हुआ जब लक्समबर्ग में बहुत से पनागुज़ीन आए। उन्होंने सर पर स्कार्फ ले रखे थे। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा क्योंकि ये कुछ नया था। चर्च में एक दो खवातीन होती थी जिन्होंने टोपी नुमा स्कार्फ लिया होता था, तो मुझे पनागुज़ीनों का ये अंदाज बहुत निराला लगा। मगर फिर भी मैंने इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरा फोकस इस्लाम पर नहीं था। लेकिन फिर चंद सालों बाद मुझे मेरे होने वाले शोहर मिले। मैंने उनसे बराह रास्त पूछा कि क्या आप मुसलमान हैं? मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये क्यों पूछा। वाकई मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं, मगर उसने कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। वो वाकई इस्लाम से मोहब्बत करता था, इसलिए उसने इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर दी। ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी। फिर मेरी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं सब कुछ खो रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्यों दुनिया ऐसी है, क्यों जानवर यहाँ मौजूद हैं। कोई मुझे इसका जवाब नहीं दे रहा था। लिहाजा जब मैं अपने शौहर से मिली तो मुझे सब कुछ समझा रहा था। फिर एक चीज मुझे इन तमाम सवालात का जवाब दे सकता है जो मैंने जिंदगी के बारे में और अकायद के बारे में और हर चीज के बारे में सोचे थे। लेकिन मैं साथ ही अपने अकायद का दिफा करने की भी कोशिश कर रही थी कि ईसाईयत ऐसी है, इसमें ये कुछ है। अगरचे मैं बाइबल और ईसाईयत के बारे में नहीं जानती थी, मैंने अपने शौहर को ईसाईयत के बारे में समझाना शुरू कर दिया और वो मुझसे ज्यादा जानता था। और फिर ये वक्त आ गया कि हम हर वक्त मजहब के बारे में बात कर रहे होते थे। इसने कुछ मुझे इस्लाम के बारे में बताया, कुछ मैंने सवाल किए। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम वाकई हक है और मैं इस्लाम के बारे में मजीद जानना शुरू हो गई। Knows more than me. At the time, we were discussing all the time about it. So I asked him about Islam. He gave me answers, and me, I tried to defend a little bit my religion. Then I start knowing that Islam is the only way and it's the truth. नाज़रीन, इस बहन का कहना था कि मैं इस सारी बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम ही जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये सच्चा मजहब है। और फिर चंद माह बाद मैं मुसलमान हो गई। मैंने अपने शौहर के साथ कलमा पढ़ा और अगले दिन हमारी शादी हो गई। मुझे इस्लाम ने बहुत मुतासिर किया। मैंने अपने आप से कहा कि वाह, मुसलमान तो जीसस पर यकीन रखते हैं और वो ईसाइयों से ज्यादा जीसस के बारे में जानते हैं। ये बहुत हैरत अंगेज था। फिर मेरे शौहर ने मुझे जीसस की वालिदा के बारे में बताया कि वो कितनी हैरत अंगेज और मुतासिर कुन थी। मुझे इससे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अगर जीसस ने कहा कि कोई पैगंबर आने वाला है तो मैं क्यों ना उस पैगंबर को मानूं। अगर जीसस ने कहा है तो मुझे इसे कबूल करना चाहिए। तो मैंने ऐसा ही किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, इस्लाम के रास्ते में मुश्किलात का सामना करने से मुताल्लिक इस बहन का कहना था कि मेरा मुसलमान बनना एक मसला बन गया। जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ तो मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरी पूरी फैमिली और बहनें रो रही थी। सब घर वाले रो रहे थे। मेरे वालिद और मेरी बहनों के शौहर मेरे बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे। ये वाकई एक मुश्किल वक्त था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि क्यों मैंने इस्लाम कबूल किया, क्यों मेरे अंदर ये तब्दीली आई। और ये तब्दीली ज्यादा नहीं थी, बस मैंने वही किया जो अल्लाह ताला का हुक्म है। और मैं जीसस से और तमाम पैगंबरों से मोहब्बत करती हूँ और मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत ज्यादा प्यार और उनका एहतराम है। मगर मेरे घर वाले ये बात समझ नहीं पा रहे थे। वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे जो मैं कह रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, अब तुम्हारे पास तुम्हारा मजहब है और हमारे पास हमारा। वो अब मेरे फैसले को कबूल कर रहे थे, ना ही मुझे सुन रहे थे। And my family and my sisters, they were crying. Everyone was crying. Them husbands and my father, he was just talking bad to me, and it was really a hard time. Really a hard time. I tried to explain the maximum that I could in that time why I became. नाज़रीन, इस बहन का कहना था कि मेरे लिए ये चीजें बहुत मुश्किल थी क्योंकि मैं क्रिसमस नहीं मनाती, मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाती, मैं किसी और की सालगिरह में भी नहीं जाती, न्यू ईयर नहीं मनाती क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं करना चाहती। मगर अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं। वो मुझे थोड़ा बहुत सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, मगर वो वाली बात नहीं रही। मुसलमान होने के 3 महीने बाद मैंने हिजाब ओढ़ना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली एक बार फिर मेरे पास आ गई और कहा कि तुम हिजाब के बगैर बहुत अच्छी लगती हो, क्यों पर्दा कर रही हो। वो
सोच रहे थे कि मेरे शौहर मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। मुझे इल्म था कि उनके लिए ये मुश्किल है क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा था। मैं अपने शौहर से मिली, फिर उनसे शादी की, फिर मुसलमान हुई और फिर हिजाब पहन लिया और ये सब चंद महीनों में हुआ था। उन्होंने मेरे शौहर के बारे में बहुत बुरा सोचा, हालांकि इसका कोई कसूर ही नहीं, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी हुई है, मैं मुसलमान हो गई और अब कोशिश कर रही हूँ कि इस्लाम को और भी बेहतर तरीके से समझूं और अब मेरी कोशिश है कि मेरे घर वाले भी हकीकत को समझ लें क्योंकि तस्लीस कोई हकीकत नहीं है। इसलिए मैं इस्लाम सीखने के लिए मजीद मेहनत कर रही हूँ ताकि उनको भी समझा सकूं। अब मैं 3 साल से मुसलमान हो चुकी हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि यही वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। नाज़रीन, ये बहन तो मुसलमान हो गई और इसके लिए अल्लाह ताला ने ऐसा इकराम फरमाया कि इसके पिछले सारे गुनाह धो डाले। बेशक ये हमारा ईमान है और उलमाए किराम भी हमें यही बताते हैं कि जो भी मुसलमान हो जाता है उसके सारे पिछले गुनाह धुल जाते हैं, उसकी जिंदगी एक स्लेट की मानद बिल्कुल साफ हो जाती है जिस पर वो नए सिरे से खूबसूरत मंजर कशी कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं मगर सारे नेक अमाल उसके साथ ही रहते हैं। That whenever a mushrik or a non-Muslim accepts Islam, all his previous sins are forgiven. All his good work is there, all his previous sins are forgiven. Not only are the previous sins forgiven, the more evil and the sins he did, when he accepts Islam, all that is converted to positive. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि कोई गैर मुस्लिम शराब नोशी करता है, जुआ खेलता है, शिर्क करता है, जब वो इस्लाम कबूल करता है, हक को पहचानता है तो इस पर अल्लाह ताला का इनाम और इकराम होता है। अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ कर देता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि जिंदगी गुजारने के लिए अपने तरीकाकार को तब्दील कर सकें। जो पैदाइश के वक्त से ही ऐसी जिंदगी गुजारता आया है जो बहुत ही आजाद ख्याल है, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी को तब्दील करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए और जब कोई अपनी एक जिंदगी को पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की खातिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है जो उसके लिए अजनबी होता है तो अल्लाह ताला उसकी काविशों को सराहता है और इसीलिए उसको ये बड़ा इनाम मिलता है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सुना आपने कि गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करने के बाद माशाअल्लाह कितनी मुतमिन थी इस्लाम पर, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात भी आपने सुनी। आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। लास्ट में एक बार फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से होगा मैं जो भी नई वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दे अपने भाई को इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।